بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے باب میں صرف چند آیات ہیں قرآن کی یا چند روایات ہیں کریم آقا کی. نہیں، سیدی شیخ الاسلام کو یہ اعزاز حاصل ہے. آپ نے اپنی اس کتاب میں 10-20 آیات نہیں بلکہ 129 آیات سے استدلال کرتے ہوئے حضور کی ختم نبوت کو واضح کیا. صرف چند روایات سے نہیں، 250 سے زائد احادیث ہیں جن سے آپ نے کریم آقا کی ختم نبوت کو واضح کیا. تو یہ عقدہ ذہن نشین رکھیں. اب 129 آیات پڑھنے کا وقت نہیں ہے، میں صرف 2 آیات مفہوم کے طور پر اور مدعا اور مقصود بیان کرنے کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں. پر ایک خلاصہ کلام ذہن میں رکھیں. اللہ رب العزت نے جب بھی دیگر انبیاء کی طرف وحی فرمائی ان کو 3 باتوں کا میسج دیا. کتنی باتوں کا؟ انبیاء سابقین کو جب بھی وحی فرمائی 3 باتوں کا میسج تھا. پہلی بات پچھلوں کی تصدیق کرنے کا، دوسری بات خود پر ایمان لانے کا، تیسری بات بعد میں آنے والے کی بشارت دینے کا. یہ ان کی وحی کے 3 مصدر ہوتے تھے. وہ 3 ماخذ بیان کرتے تھے. اپنے سے پچھلوں کی تصدیق کرتے تھے، خود پر ایمان کی بات کرتے تھے، بعد میں آنے والے کی بشارت دیتے تھے. یاد رکھیے گا جب وہ یہ تینوں باتیں کرتے تھے ان کا علاقہ بھی محدود ہوتا تھا، ان کا زمانہ بھی محدود ہوتا تھا اور ان کی امت کا دائرہ بھی محدود ہوتا تھا. کیوں کہ اللہ رب العزت نے ان نبیوں اور رسولوں کو تخصیص کی شان عطا کی تھی. ان کے لیے اس نے حدیں مقرر کر رکھی تھی. ان کے لیے امتوں کو محدود کر رکھا تھا، لوگ محدود کر رکھے تھے، رسالت اور نبوت کا دائرہ محدود کر رکھا تھا. مگر قربان جاؤں جب بات کریم آقا کی آئی اس نے حدود اور قیودات کو ختم کر دیا. امام تقی الدین سبکی فرماتے ہیں اللہ نے حضور کو عمومیت کی شان عطا کی. عمومیت کی شان کیا ہے کہ حضور کسی طبقے، جماعت یا گروہ کے نبی رسول بن کر نہیں آئے، بلکہ آپ کی عظمت و شان یہ ہے فَتَكُونَ نَبُوَّتُهُ وَرِسَالَتُهُ عَامَّةً لِجَمِيعِ الْخَلْقِ مِنْ زَمَنِ آدَمَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَتَكُونَ الْأَنْبِيَاءُ وَالْأُمَمُ كُلُّهُمْ مِنْ أُمَّتِهِ کہ لوگوں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں وہ ملال والا، عزت و شان والا، جاہ و جلال والا، منصب و اکرام والا نبی عطا کیا ہے. اس کی نبوت زمانوں سے پاک ہے، اس کی رسالت علاقوں سے پاک ہے. وہ کسی طبقے، جماعت یا محدود لوگوں کا نبی بن کر نہیں آیا. اس کی شان یہ ہے ابد الآباد سے لے کر تا قیامت تک ہر نبی ان کا امتی ہے، ہر رسول ان کا امتی ہے. اللہ نے قرآن میں اسی کی تصریح فرمائی. ارشاد فرما قل محبوب فرما دیجئے. باری تعالیٰ کس سے؟ کسی جماعت سے، طبقے سے، گروہ سے؟ فرما نہیں محبوب تیری شان یہ ہے قل یا ایہا الناس. محبوب قل طبقہ انسانیت سے فرما دیجئے کیا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کی بارگاہ سے تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. یعنی میں کسی طبقے یا جماعت کی طرف، میں کل انسانیت کی طرف اللہ کی بارگاہ سے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. جس نے رسول بنایا ہے اس کا تعارف کیا ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض. لوگوں اس نے رسول بنا کے بھیجا ہے جس کی بادشاہت زمین و آسمان کے لیے ہے. دیکھیں پہلے حصے میں اللہ نے حضور کی رسالت کا تعارف اور دوسرے حصے میں اپنی ربوبیت کا تعارف پیش کیا. یہ اہل ایمان کے لیے بڑی ذوق طلب بات ہے. پہلے حصے میں اللہ نے اپنے محبوب کی رسالت کا تعارف پیش کیا، دوسرے حصے میں اپنی ربوبیت کا تعارف پیش کیا. سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں اس کے ذریعے اللہ سمجھانا چاہتا تھا لوگوں سن لو جہاں جہاں تک مجھ خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے. جس طرح کائنات ارضی و سماوی کا کوئی ذرہ مجھ رب کی ربوبیت سے خالی نہیں ہے، اس طرح کائنات ارضی و سماوی کا کوئی ذرہ میرے محبوب کی رسالت سے خالی نہیں ہے. جہاں جہاں تک
کے لیے میں خدا ہوں، وہاں وہاں تک کے لیے میرا مصطفیٰ رسول ہے۔ سامعین محتشم، یہ شان اللہ نے صرف حضور کو عطا نہیں کی، حضور کی کتاب کو بھی عطا کی، اسے بھی عمومیت کا درجہ عطا کیا۔ فرمایا ان ہوا ذکر للعالمین، اس کتاب کی بھی شان یہ ہے یہ سارے جہانوں کے لیے ہے۔ پھر صرف کتاب کو نہیں، حضور کو بھی یہ شان عطا کی۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے محبوب کی بھی شان یہ ہے کہ وہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اب تین باتیں ذہن میں رکھیے گا، پھر ہم کریم آقا کے ارشادات کی طرف آتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ اس کا تعارف ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ محبوب کا تعارف ہے۔ اور ان ہوا الا ذکر للعالمین، ان ہوا ذکر للعالمین، یہ اس کے محبوب کی کتاب کا تعارف ہے۔ اس نے صرف خود کے لیے عالمین کی نسبت نہیں کی، صرف محبوب کے لیے عالمین کی نسبت نہیں کی، اس نے محبوب کی کتاب کے لیے بھی عالمین کی نسبت فرمائی ہے۔ تو سامعین محتشم، آیات بینات پڑھتے جائیں، وہ دن کی سفیدی کی طرح حضور کی ختم نبوت کو واضح کریں گی۔ اب آئیں کریم آقا کے ارشادات کی طرف۔ یہ ارشادات کا حصہ میں مختصر کروں گا اور گزارش کروں گا کوئی اٹھ کر نہ جائے، چونکہ اگلا حصہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ میں 8 سے 5 منٹ میں حدیثیں ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت کے محبوب نبی نے اپنی ختم نبوت کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے فرمایا لوگوں سنو، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، اللہ نے نبوت و رسالت کو مجھ پر منقطع کر دیا ہے۔ لا نبی بعدی ولا رسولہ، اب قیامت تک میرے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رسول آ سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا لوگوں سنو، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وانا خاتم النبیین، اور میں نبیوں کا خاتم ہوں۔ کریم آقا نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب بخاتم النبیین، میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں آخری نبی لکھا جا چکا تھا۔ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِي، کہ جب آدم کا خمیر ابھی مراحل تیاری میں تھا، میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں آخری نبی لکھا جا چکا تھا۔ کریم آقا نے فرمایا لوگوں سنو، میری شان یہ ہے کنت اول النبیین فی الخلق، اللہ نے سب سے پہلے مجھے نبوت میں تخلیق فرمایا، یعنی سب سے پہلا نبی میں ہوں۔ پھر وآخرہم فی البعث، سب سے پہلے تخلیق بھی مجھے فرمایا اور سب سے آخر میں مبعوث بھی مجھے فرمایا۔ حضور نے فرمایا علی سن، تیری مجھ سے وہی نسبت ہے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، جو حضرت ہارون کے ساتھ حضرت موسیٰ کی تھی، لیکن ہارون اللہ کے نبی تھے، پر حقیقت حال یہ ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضور نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھے انبیاء پر 6 فضیلتیں عطا کی ہیں۔ وَأُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلَمِ، اللہ نے مجھے جوامع القلم سے نوازا۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے روب کے ساتھ میری مدد فرمائی۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُہُورًا، پہلے انبیاء کے لیے سجدہ گاہیں بھی مخصوص ہوتی تھی، وہ ہر جگہ سجدہ نہیں کر سکتے تھے، عبادت نہیں کر سکتے تھے، لیکن میری شان یہ ہے اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو پاک کر دیا ہے، اب میں یا میرا امتی بھی جہاں چاہے سجدہ کر سکتا ہے، جہاں چاہے مسجد بنا سکتا ہے۔ پھر کریم آقا نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ نے مجھے جمیع مخلوقات کی طرف اپنا نبی بنا کے بھیجا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النُّبُوَّةُ، اس کے باوجود میری شان یہ ہے رب نے مجھ پر نبوت کا اختتام کر دیا ہے۔ سامعین محتشم، کریم آقا نے صرف ختم نبوت کے عقیدہ کو واضحیت کے لیے ارشادات عطا نہیں فرمائے، بلکہ حضور نے قیامت تک کے لیے ان بدبختوں کی تعداد بھی بتا دی جو حضور کی ختم نبوت پر حملہ کریں گے۔ حضور نے فرمایا لوگوں سنو،
सयकून फी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून, मेरी उम्मत में 30 कज़्ज़ाब झूठे बदबख्त पैदा होंगे। कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन, उनमें से हर एक का ज़ोम दावा होगा वो नबी है, जबकि हकीकत ये है अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, मैं नबियों का खातम हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता है। सामीन मोहतरम, अब मुझे बताएं, अगर करीम आका कोई बात करें उसके पूरे होने में कोई शक हो सकता है? कोई रत्ती बराबर हेर फेर हो सकता है? कोई तरमीम हो सकती है? जब हुजूर ने फरमा दिया मेरी उम्मत में बदबख्त लोग आएंगे तो इसका मतलब था उन्होंने आना था। फिर करीम आका के ज़माना के बिल मुत्तसिल सबसे पहला बदबख्त जिसने हुजूर की ख़त्म नबूवत पे हमला किया वो मुसैलमा कज़्ज़ाब था। कुर्बान जाऊं खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन, यारे गार व यारे मज़ार सय्यदिना अबू बकर as-सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु, जब इस बदबख्त ने करीम आका की ख़त्म नबूवत पर हमला किया, आपने सब मसलहतों को बालाए ताक रखते हुए सबसे पहले इस फितने का कला कमा किया। दूसरा बदबख्त जिसने हुजूर की ख़त्म नबूवत पे हमला किया वो असवद इंसी या उनसी था। जब इसने दावा नबूवत किया, कुर्बान जाऊं सय्यदिना फिरोज देलमी रदियल्लाहु ताला अन्हु पर, जिन्होंने इस बदबख्त को वादी सिना में वासिले जहन्नम किया। फिर हारिस बिन सईद कज़्ज़ाब दमश्की ने करीम आका की ख़त्म नबूवत पे हमला किया, इससे अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में वासिले जहन्नम किया गया। फिर 119 हिजरी में मुगीरा बिन सईद और बयान बिन सुमान तमीमी ने दावा नबूवत किया, जिससे अमीर इराक खालिद बिन अब्दुल्ला कसरी ने वासिले जहन्नम किया। फिर अबू मंसूर उजली ने दावा नबूवत किया, जिसे अमीर इराक यूसुफ बिन उमर सकाफी ने वासिले जहन्नम किया। फिर बहा फरीद नेशापुरी ने दावा नबूवत किया, जिसे अबू मुस्लिम खरासानी ने वासिले जहन्नम किया। फिर 135 हिजरी में मलऊन इसहाक अखरस ने दावा नबूवत किया, जिसे अबू जाफर मंसूर अब्बासी खलीफा के दौर में वासिले जहन्नम किया गया। फिर उस्ताद सीस खरासानी ने दावे नबूवत किया, जिसे खासिम बिन खुजैमा ने वासिले जहन्नम किया। फिर बाबक बिन अब्दुल्ला ने 222 हिजरी में करीम आका की ख़त्म नबूवत पे हमला किया, जिसे खलीफा मुअतमम ने वासिले जहन्नम किया। फिर अली बिन मोहम्मद खारजी ने दावे नबूवत किया, अबू सईद हसन बिन बहराम ने दावे नबूवत किया, अली बिन फजल यमनी ने दावे नबूवत किया, हामीम मजलिसी ने दावे नबूवत किया, अब्दुल अजीज बासनीदी ने दावे नबूवत किया, अबू मंसूर असबी बरगवाती ने दावे नबूवत किया, अबू तबीब अहमद बिन मुतनब्बे ने दावे नबूवत किया, असगर तगलबी ने दावे नबूवत किया, अहमद बिन कुसा ने दावे नबूवत किया, अब्दुल हक मुर्सी ने दावे नबूवत किया, अब्दुल अजीज तरापुलिसी ने दावे नबूवत किया। इधर ये बदबख्त मुख्तलिफ अदवार में करीम आका की ख़त्म नबूवत पर हमला आवर होने के लिए सर उठाते रहे। रब के मुकर्रब बंदे इन बदबख्तों का सर उड़ाते रहे। कोई दौर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जब इन्होंने सर उठाया हो और रब के मुकर्रबीन ने इनका सर ना उड़ाया हो। सामीन मोहतरम, फिर एक वक्त आता है 1835 का, जब कादियान की सरजमीन पर मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी वो बदबख्त पैदा होता है जो करीम आका की ख़त्म नबूवत पर 13 पैंतरे बदल बदल के हमले करता है। कितने पैंतरे बोलें ज़रा? 13 पैंतरे। आप में से अगर कभी किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का किसी कादियानी से सामना हो और आप उसे कहें कि 13 वो बदबख्त जिसने नबी होने का दावा किया था, वो फौरन आपको कोई किताब दिखाएगा रेफरेंस के साथ, हवाले के साथ, और कहेगा किताब पढ़ लो। उन्होंने कहीं भी नबी होने का दावा नहीं किया था, बल्कि उसने तो मुजद्दिद होने का दावा किया था, उसने तो मुहद्दिस होने का दावा किया था। जब सादा लोग जवान वो किताब पढ़ता है, फिर हवाला पढ़ता है, फिर उसके दिल में ये ख्याल पैदा होता है उलमा तो हमसे झूठ बोलते रहे, उन्होंने तो गलत बयानी की है, जबकि उसने तो कहीं भी नबूवत का दावा नहीं किया। आए मैं आपको बताता हूँ उस बदबख्त
बख्त ने 13 पैंतरे बदल बदल कर करीम आका की ख़त्म नबूवत पे हमला किया। अब इक़्तिबासात पढ़ने का वक्त नहीं है, इस किताब में सारी तफसील मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं। उसने जो 13 दावे किए मैं चंद हवाला जात के साथ आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहला दावा रूहानी ख़ज़ाइन और किताबुल बरिया में उस बदबख्त ने मुजद्दिद होने का किया। दूसरा दावा निशाने आसमानी किताब में उस बदबख्त ने मुहद्दिस होने का किया। तीसरा दावा इज़ाला औहाम किताब में उसने महदी होने का किया। चौथा दावा मकतूबात अहमदिया में उसने मसीले मसीह होने का किया। पांचवा दावा बराहीन अहमदिया में उसने ऐने मसीह होने का किया। छठा दावा उसने मसीह पर फजीलत का किया। सातवां दावा उसने सरीह दावा नबूवत किया। आठवां दावा उसने जिल्ली नबूवत का किया। फिर बरूजी नबूवत का दावा किया। फिर हकीकियो तशरीई नबूवत का दावा किया। जब इस पर भी इक्तिफा नहीं हुआ फिर उस बदबख्त ने ऐने मोहम्मद होने का दावा किया। जब इस पर भी इक्तिफा नहीं हुआ उसने आका पर फजीलत का दावा किया। जब इस पर भी इक्तिफा नहीं हुआ उसने अपनी निस्बत आखिरी नबी होने का दावा किया। जब इस पर भी इक्तिफा नहीं हुआ फिर उस बदबख्त ने सब नबियों का जामे होने का दावा किया। उसने कहा लोगों सुनो, मैं आदम भी हूँ, मैं नूह भी हूँ, मैं इब्राहीम भी हूँ, अलगर्ज अल्लाह के 1.25 लाख नबी मेरे वजूद में जम कर दिए गए हैं। अब आप तसव्वुर करें, कोई सादा लोह बंदा सोच सकता है, हमारी बहनें बेटियां बैठी हैं, कोई सोच सकता है जिसने ये दावे किए हों वो बड़ा फहम व फिरासत वाला होगा, अक्ल व शऊर वाला होगा, बड़ी दानाई वाला होगा? नहीं नहीं, जिसने ये दावे किए हैं आए मैं उसकी जहनी हालत और दिमागी कैफियत आपको बताता हूँ। पर पहले ये बात सुन लें, अब जो मैं बात करूँगा ये मिनहाजुल कुरान का तर्ज तबलीग नहीं है, अंदाज़ खिताब नहीं है, हमारा तर्ज तकल्लुम नहीं है, हम ऐसे गुफ्तगू नहीं करते। लेकिन हमारा ये अकीदा और ईमान है, जब बात हुजूर की नामूस की आती है फिर हम अपनी इज़्ज़तों को पैरों की खाक भी नहीं समझते हैं। इसलिए बहनें बैठी हैं, ये बातें करना ज़रूरी हैं तरबियत के लिए। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जिसने करीम आका की ख़त्म नबूवत पर 13 पैंतरे बदल बदल के हमला किया, उसकी जहनी हालत क्या थी? उसका बहुत बड़ा गुम्माश्ता मिर्ज़ा बशीर अहमद कादियानी अपनी किताब सीरतुल महदी में लिखता है, मिर्ज़ा कहा करता था मैं खुदा का नुत्फ़ा हूँ, माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह। वो कहता था मैं खुदा का बेटा हूँ, वो कहता था मैं खुदा की बीवी हूँ, वो कहता था जो औरतों को मखसूस मामलात होते हैं महीने में, मुझ पर वो कैफियत भी तारी होती है। आप तसव्वुर करें जिसने हुजूर की ख़त्म नबूवत पे हमला किया उसकी दिमागी हालत क्या है। उसका एक और गुम्माश्ता मिर्ज़ा उमर महराजुद्दीन कादियानी अपनी किताब बराहीन अहमदिया में लिखता है, मिर्ज़ा को पेशाब के कतरों की बीमारी थी। वो एक जेब में मिट्टी का ढेला और एक जेब में गुड़ रखता था, चूंकि उसे गुड़ खाने का भी बहुत शौक था। जब पेशाब के कतरे आते गुड़ से साफ कर लेता था, मिट्टी का ढेला खा लिया करता था। ये उसकी दिमागी कैफियत थी। मिर्ज़ा एक दाइमुल मर्ज आदमी था। मेरे शेख फरमाते हैं रूए ज़मीन पर कोई ऐसी बीमारी नहीं थी जो उस बदबख्त को ना हो। उसकी हालत ये थी उसे जूते पहनने की भी तमीज़ नहीं थी। किसी ने जूते तोहफे किए तो उसकी माँ बिठा कर कहती है, वो उल्टा सीधे पाँव में पहनता था, सीधा उल्टे पाँव में। तो माँ ने कहा बेटा ये निशान लगा रही हूँ, आज से उल्टा इस पाँव में पहनना है और सीधा इस पाँव में पहनना है। ये उसका दिमागी लेवल था, उसकी जहनी कैफियत थी और उसकी ये तबीयत थी। जब वो बदबख्त इस हालत में रहता था फिर कैफियत क्या थी? वो एक दाइमुल मर्ज आदमी था। रूए ज़मीन की हर बीमारी उसको लगी हुई थी। यही वजह थी जब उसके मरने का वक्त करीब आया उसे बाथरूम से निकलने की भी मोहलत नहीं दी गई। फिर वो बाथरूम में मरा। और आप सारे जानते हैं, अगर नहीं जानते तो याद रखें, अल्लाह का जो नबी होता है उसको मौत पर इख्तियार दे दिया जाता है,
नबी की शान होती है, उसको मौत पर तसर्रुफ दिया जाता है। अल्लाह का नबी जहां विसाल फरमाता है वही उसका मदफन बनता है। सैयदना इस्राईल अलैहिस्सलाम, सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह रिवायत है, आप हजरत मूसा की रूह कब्ज करने का इरादा लेकर हाजिर हुए। हजरत मूसा ने एक थप्पड़ मारा, आंख का डेला बाहर आ गया। अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, मौला ऐसे बंदे के पास भेजा है जो मौत को पसंद ही नहीं करता। मेरे शेख फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया होगा, इज़राइल मेरा मूसा तुझे बारगाहे रिसालत के आदाब सिखा रहा था, वो बता रहा था आज तो मेरी बारगाह है, सिर्फ आंख निकाली है, कल आमिना के लाल रब के महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने आना है, कहीं ये गलती वहां जाके नहीं कर देना। तो सामीन मोहतरम, जो अल्लाह का नबी होता है उसे मौत पर इख्तियार दिया जाता है, वो जहां विसाल फरमाए वो उसका मदफन होता है। अब अगर उस बदबख्त को बदबख्त मानने वाले खुदा का नबी मानते हैं, फिर वहां से निकालें जहां उसे दफन किया है, वहां दफनाएं जहां वो मरा था। अज़ल से उसूल है, कुल्लु शैइन यरजिउ इलल अस्ल, हर चीज अपनी असल की तरफ जाती है। जो गंदगी से बना हो वो गंदगी में मरता है, गंदगी में दफन होता है। तो सामीन मोहतरम, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी वो पहला बदबख्त नहीं था जिसने हुजूर की खत्म नबूवत पे हमला किया। हर दौर में हुजूर की खत्म नबूवत पे हमला हुआ है, और ये भी अल्लाह का उसूल है। अगर कोई बदबख्त बनते हुए नमरूद की सूरत में सामने आता है, वो उसके सामने इब्राहीम को ज़रूर भेजता है। अगर कोई फिरौन बनकर उठता है, उसके मद्दे मुकाबिल मूसा ज़रूर आता है। अगर कोई मरहब बन के ललकारता है, मैदान में करीम आका अली को ज़रूर भेजते हैं। कोई यजीद बन के सर उठाता है, हुसैन मैदान में ज़रूर आता है। सामीन मोहतरम, ये अज़ल से अल्लाह का उसूल रहा है, वो अपने मुकर्रब बंदों को भेजता रहता है। कभी उम्मत पर पुरफितन वक्त आता है, वो करम फरमा कर उम्मत को जमा कर देता है, और सैयद जमात अली शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह की माइयत में उन्हें हुजूर की नामूस का पहरेदार बना देता है। कभी वक्त आता है अंग्रेज साम्राज्य ताकतवर बनते हुए हुजूर की खत्म नबूवत पर हमला आवर होता है, तो इधर रब की अता से आला हजरत इमाम अहमद रिजा खां फाजिल बरेली नव्वर अल्लाहु मरकदाहू मैदान में ज़रूर कदम रखते हैं। अगर कोई बदबख्त फिर सर उठाता है, मैं कुर्बान जाऊं ताजदार गोलड़ा सैयदना महरे अली रहमतुल्लाह ताला अलैह मैदान में ज़रूर आते हैं। फिर कोई बदबख्ती पर उतरता है, रब तहरीक खत्म नबूवत की सूरत में उम्मत को मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी की मैयत में जमा कर देता है। फिर कोई बदबख्त सर उठाता है, रब जुल जलाल शाह अहमद नूरानी मेरठी रहिमहुल्लाह की मैयत में उम्मत को जमा कर देता है। अगर वो वक्त 1973-74 का हो, रब करम फरमाता है, दुनियादारों को एक जगह बिठाता है, उलमा को जमा करता है, एक दुनियादार से वो काम ले लेता है कि कादियानियों को आईने पाकिस्तान के जरिए क़यामत तक के लिए काफिर डिक्लेयर करवा देता है। फिर एक वक्त आता है 1984 का, ये वो वक्त था जब कादियानी शायर इस्लाम की इजाज़त मांगते हैं। वो कहते हैं हमें इजाज़त दी जाए, हम गैर मुस्लिम अक़लियत हैं, हम अपनी इबादत गाह बनाना चाहते हैं, मज़हब की तरवीज करना चाहते हैं, अपनी किताब का दर्स देना चाहते हैं, उसे नबी कहना चाहते हैं, उसकी बीवी को उम्मुल मोमिनीन कहना चाहते हैं। वो शायर की इजाज़त मांगते हैं। 19 समातें विफाकी शरी अदालत इस्लामाबाद में हो जाती हैं। 6 उलमा का पैनल होता है, 6-6 घंटे की समात होती है, लेकिन केस काबू में नहीं आता। कादियानियों का पलड़ा भारी होता है। मैं 6 उलमा के नाम नहीं लेता, जब केस नहीं संभलता, कुर्बान जाऊं हुजूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह पर आप डॉक्टर ताहिरुल कादरी को बुलाते हैं। डेनमार्क का दौरा मनसूख करके डॉक्टर ताहिरुल कादरी पाकिस्तान आते हैं। 3 दिन का अदालत से वक्त मांगते हैं। 7वां नाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी का है। उस पूरी विफाकी शरी अदालत के फैसले में किसी
किसी आलिम दीन का नाम नहीं है। ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, सिर्फ डॉक्टर ताहिरुल कादरी का नाम है। क्यों कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी 19 समातों में जो केस नहीं संभलता, अगली 6 घंटे की समात में कादियानियों का केस फारिग करवा देते हैं और कयामत तक के लिए 298 बी और सी को आईन का हिस्सा बना देते हैं। अब कयामत तक कोई कादियानी अपने मजहब की तबलीग नहीं कर सकता, तरवीज नहीं कर सकता, उसे नबी नहीं कह सकता, उसकी बीवी को उम्मुल मोमिनीन नहीं कह सकता, उसकी औलाद को अहले बैत नहीं कह सकता, उसके साथियों को सहाबी नहीं कह सकता, उसकी इबादत को नमाज नहीं कह सकता, इबादत गाह को मस्जिद नहीं कह सकता, उसकी किताब को कुरान नहीं कह सकता। फिर वक्त आता है 1986 का, एक हीला हुज्जत बहाना पेश किया जाता है कि करीम आका की गुस्ताखी एक इंसान की तौहीन है और इंसान की तौहीन पर मौत की सज़ा, ये इंसानियत की तजलील है, इसे बदला जाए और इसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए। कुर्बान जाऊं, फिर डॉक्टर ताहिरुल कादरी विफाकी शरी अदालत में कदम रखते हैं, 18 घंटे तक दलाइल देते हैं और ये बात 295C की सूरत में आईन का हिस्सा बना देते हैं। गुस्ताख नबी की एक सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। बस फर्क इतना था, वो नारा नहीं लगवाते, इसे आईन का हिस्सा बनवा देते हैं। फिर वक्त आता है 1988 का। 1988 वो वक्त था, आप में से शायद किसी बुजुर्ग को याद भी हो, जब मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का एक बहुत बड़ा गुम्माश्ता मिर्ज़ा ताहिर अहमद कादियानी मुसलमानों को मुनाजरे के लिए पुकारता है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी उसके चैलेंज मुनाजरा को कबूल करके फरमाते हैं, एक बात की तब्दीली कर रहा हूँ, मेरे सामने बैठ, मुनाजरा नहीं करूँगा, तुझसे मुबाहिला करूँगा और मुबाहिले में सिर्फ 3 बातें होंगी। कितनी बातें? 3 बातें होंगी। पहली बात, जब तू मेरे सामने बैठेगा 11 और 12 रबी नूर की दरमियानी शब मीनार पाकिस्तान के साए में तू मेरे सामने बैठेगा, सुबह बादशाही मस्जिद के मीनारों से अल्लाहु अकबर की सदा बाद में गूंजेगी, तू अपने अकीदे से तौबा करके पहले मुनहरिफ होकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुका होगा। अगर ये बात ना हुई, दूसरी बात, तेरी मौत वाक़े हो जाएगी। जब आपने ये जुमला कहा, कुर्बान जाऊं, स्टेज की सदारत मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी रहमहुल्लाह फरमा रहे थे। आपने रोक लिया, फरमाया प्रोफेसर साहब जानते हैं क्या कह रहे हैं, मौत का तो इख्तियार तकदीर मुबरम है, आप ये बात ना करें, इसके अलावा कोई बात करें। सैयदी शेखुल इस्लाम ने फरमाया, मौलाना साहब मैं कुछ नहीं जानता, सिर्फ इतना जानता हूँ जिनके लिए कह रहा हूँ वो मेरी लाज रखेंगे। फिर चश्मे फलक ने देखा, डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने तीसरी बात की, फरमाया अगर ये दोनों बातें ना हुई, तू मुसलमान भी ना हुआ, तू मरा भी नहीं, तो फिर ताहिरुल कादरी का सर होगा जिस चौक में चाहे सर तन से जुदा कर देना। सारी रात उस बदबख्त का इंतजार होता रहा। नाम उसका ताहिर था, नीरी निजासत था, नाम ताहिर था, नीरी गिलाजत था, नाम ताहिर था, नीरी गंदगी था। उसके मद्दे मुकाबिल उस रब की आता बनते हुए, करीम आका के नालैन के तसद्दुक से तहारत की खैरात पाते हुए, फरीद मिल्लत की दुआ बनते हुए, वो ताहिरुल कादरी सारी रात उसे ललकारते रहे। ना उस बदबख्त ने आना था, ना वो आया। मेरा विजदान कहता है अगर वो आ जाता फिर कयामत आ सकती थी, रूए जमीन पर कोई कादियानी नहीं आता। सामीने मोहतशम, शायद आपको मालूम ना हो उस स्टेज पर कौन कौन मौजूद थे। सुने, उस स्टेज पर कुर्बान जाऊं, हुजूर ज़ियाउल उम्मत पीर करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह मौजूद थे। कुर्बान जाऊं, सियाल शरीफ का वो शहजादा जिसे दुनिया हमीदुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से जानती है, पीर सियाल उसकी क़यादत और सरपरस्ती फरमा रहे थे। स्टेज पर जय्यत उलमा मौजूद थे और हज़ारों उलमा और मशाइख की मौजूदगी में जब सारी रात वो बदबख्त नहीं आया, सब उलमा ने आगे बढ़कर डॉक्टर ताहिरुल कादरी का माथा भी चूमा और खिराज तासीन भी अदा की। सामीने मोहतशम, ये बात सिर्फ डॉक्टर ताहिरुल कादरी तक नहीं है, क़यामत तक जो बदबख्त भी हुजूर की ख़त्म नबूवत पे हमला करेगा, अल्लाह अपने मुक़र्रब बंदों के ज़रिए उनका सर
उड़ाता रहेगा, उनका कला और कमा फरमाता रहेगा। पर ये बात मैसेज नहीं है। आज याद रखिएगा, तागूत सर जोड़कर बैठा, कुफ्र यहूद उसकी सरपरस्ती में आया। उन्होंने वो जौहर तलाश किया जो मुसलमानों को एक रखता था, वो मरकज़ तलाश किया जो मुसलमानों को मुत्तहिद रखता था। फिर उसने मुसलमानों को तस्बीह के दानों से निकाल कर फ़िरक़ावारियत में तकसीम किया, मसलकी इख्तिलाफ़ात में तकसीम किया, आपसी गिरोहबंदियों में तकसीम किया। लेकिन इस सब के बावजूद वो बदबख्त एक काम नहीं कर सका, हमारे दिल से हुजूर की मोहब्बत नहीं निकाल सका। इकबाल ने कहा, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं ज़रा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दे। उसने बड़ी कोशिश की हमें तोड़ने की, लेकिन वो जब भी हमें तोड़ता था हम हुजूर के नाम पे जुड़ जाया करते थे। सामीन मोहतरम, ये बात जहन नशीन रख लें, मिनहाजुल कुरान का पैगाम, फ़िक्र, मैसेज यही है। हम आपको सूए गुंबद खजरा लेके जाना चाहते हैं, आपके दिल में ये फ़िक्र रासिख करना चाहते हैं कि आओ इश्क़ सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। अगर कोई बंदा चाहता है वो हुजूर से मोहब्बत, गैर मशरूत ताल्लुक़ और बिला तामुल अक़्द क़ल्बी फिर कायम हो जाए। देखें, आप सब जानते हैं हुजूर का हम पे बड़ा मान है, हम उम्मतियों पे हुजूर को बड़ा, हुजूर का मान क्या है? हुजूर फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलै मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। मेरा मान ये है, जब मेरे उम्मती के सामने मेरी बात आती है ना, फिर ये अपनी औलाद भी कुर्बान कर देता है, फिर ये माँ बाप भी कुर्बान कर देता है, फिर ये कुल कायनात भी कुर्बान कर देता है, सब कुछ कुर्बान कर देता है, मुझ पर सब कुछ कुर्बान कर देता है। यानी सब कुछ कुर्बान करने के बाद मेरा हो जाता है। तो सामीन मोहतरम, हुजूर का ये मान आज हवादिसात ज़माना गर्द के ज़रिए हम पर गदला कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं उस मान को फिर से बहाल किया जाए, कई मशरब होंगे, कई तुर्क होंगे, कई लोग होंगे, कई तहरीकात होंगी, लेकिन नमक हलाली भी एक चीज़ है। मैं आपको एक मैसेज देता हूँ, अगर आप में से कोई बंदा वो रुत और बहार देखना चाहता है कि कैसे रब के मुकर्रब बंदे उसका ज़िक्र करते हैं, वो एक मरतबा रमज़ान के आखिरी अशरे में उस शहर एतिकाफ़ में जाए जिसे तौबा, आंसुओं, सिसकियों और आहों की बस्ती कहा जाता है। वहाँ एक बार जाके देखे कि वहाँ जाके मिलता क्या है। अल्लाह पाक आप और हम सब को अमल की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। सामीन मोहतरम, दो चीज़ें याद रखिएगा, ये दीन करीम आका की ज़ात का नाम है, करीम आका के इरशादात का नाम है। हुजूर ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहू, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो ख़ुद भी कुरान सीखे और दूसरों को भी कुरान सिखाए। तहरीक मिनहाजुल कुरान का यही मकसद है कि वो लोगों को कुरान के करीब करना चाहती है और साहिब कुरान से जोड़ना चाहती है। मैं आप सब अहबाब को बतौर नुमाइंदा तहरीक मिनहाजुल कुरान नहीं, बतौर नुमाइंदा कुरान ये पैगाम देना चाहता हूँ। खानेवाल की सरज़मीन पर तहरीक मिनहाजुल कुरान ने अजीम शान प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं, जिनमें से एक प्रोजेक्ट बच्चियों की तरबियत का है, तालीम का है। उन्हें दीनी तालीम से और असरी उलूम से हम आहंग करना है और उन्हें दीन और दुनिया का हुस्न अता करना है, ताकि वो दुनिया में रहें लेकिन दीन के मुताबिक रहें। उसका एक अजीम शान प्रोजेक्ट खानेवाल में मिनहाज शरिया कॉलेज बराए ख़वातीन के नाम से इसी आपके करीबी कस्बा में मौजूद है, बस्ती अजीज़ाबाद में। आप सारे जानते हैं वो तकरीबन अपने तकमील के मराहिल को मुकम्मल हो चुका है और वहाँ फर्स्ट ईयर की क्लासेस का आगाज़ हो चुका था, अब BS की क्लासेस का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो आप सबको ये दावत है कि आप में से हर बंदा जो अपनी बेटियों को दीनी और दुनियावी इल्म बहम अता करना चाहता है और उसकी ख्वाहिश है वो दुनिया भी दीन के मुताबिक गुजारें, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। दूसरी बात, मिनहाज इस्लामिक सेंटर नज़द पंजाब पेट्रोल पंप, मिनहाज इस्लामिक सेंटर पुराना खानेवाल और मिनहाज पब्लिक स्कूल 7वां मील चक शहाना रोड, ये तहरीक मिनहाजुल कुरान के वो प्रोजेक्ट हैं जिनके ज़रिए हम कुरान और साहिब कुरान की दावत का काम कर रहे हैं। आप में से जो बंदा इन प्रोजेक्ट्स के अंदर मुआवनत करना चाहे,
اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے کچھ خرچ کرنا چاہے تو لازمی بات ہے اس پر یہ حق بنتا ہے کہ وہ ان پروجیکٹس میں اپنا حصہ ضرور شامل کرے۔ وہ حصہ جب شامل کرے گا تو یقیناً اللہ رب العزت اسے دین اور دنیا کی خیرات، برکات اور صدقات عطا فرمائیں گے۔ میں آخر گفتگو میں تمامی احباب کو 3-4 باتیں مزید کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو منہاج القرآن صرف اسلامک عصری اور شرعی علوم کے پروجیکٹ نہیں رکھتی، بلکہ ہم ویلفیئر کے بھی کام حد درجہ بڑھ کر کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارا ایک ادارہ ہے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن، پھر اس کے مختلف فلاحی کام ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ چاہے زکوٰۃ، عشر، صدقات اور فطرانہ، وہ رابطہ کر سکتا ہے محترم راجہ مظہر کیانی صاحب سے اور محترم اشفاق صاحب سے۔ سامعین محتشم، آخر گفتگو میں ان باتوں کو ختم کرتے ہیں، وقت زیادہ ہو جائے گا۔ میں کل کے خطاب کی دعوت دے کے دعا کی طرف آتا ہوں۔ کل انشاءاللہ اس 5 روزہ دروس کی 4تھی نشست ہوگی۔ کون سی؟ چوتھی۔ اور چوتھی نشست کا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ موضوع ہے غصہ، ڈپریشن اور اس کا علاج۔ ہم میں سے خواتین بالخصوص وہ ہر دوسری چیز کو جادو سے، کسی کی بندش سے، کسی کی کاٹ سے تعبیر کرتی ہیں۔ ان کی حقیقت سے انکار بھی نہیں ہے، لیکن ہر چیز میں یہ چیزیں شامل بھی نہیں ہیں۔ وہ ہر دوسری چیز کو جادوگر کی جادوگری سے تعبیر کر کے اپنے اعتقادات کو خراب کرتی ہیں۔ کل انشاءاللہ دور حاضر کا ایک بہت بڑا مسئلہ غصہ، ڈپریشن اور اس کا علاج، اس کے ذیل میں قرآنی اور نبوی فرمودات کی روشنی میں انشاءاللہ ایک سیر حاصل گفتگو سیدی شیخ الاسلام کے قابل فخر فرزند علامہ احسان رضوی حافظہ اللہ فرمائیں گے۔ تمام احباب کو شرکت کی دعوت ہے۔ اور میں ایک اور ریکویسٹ کروں، یہ جو آپ چلتے پھرتے رہتے ہیں نا، یہ چلنا پھرنا ذرا کم کیا کریں۔ گفتگو میں جب انقطاع پیدا ہو جائے، ویسے شاید آپ میں سے بعض لوگ اس پر اختلاف کر لیں، اختلاف کیا بھی جا سکتا ہے، یہ کوئی قرآن حدیث کی بات نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی خطاب فرما رہے تھے، دوران خطاب کسی چیل نے شور کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا مالک قطع اللہ عنقا کہ تو کیا ہے تیرا سر قلم ہو جائے۔ وہیں سر قلم ہوا، وہ زمین پہ گر گئی۔ تو ہمیں وہ شان نہیں ملی کہ ہم بھی کچھ کہیں اور ہو جائے، ہم تو ان کے سگوں کے بھی سگ ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ ادھر ادھر چلتے رہیں گے تو گفتگو کا مزہ اور حسن نہیں آئے گا۔ توجہ سے منہمک ہو کر گفتگو سنا کریں، تاکہ گفتگو یہاں سے ہوتی ہوئی یہاں تک آئے۔ جب یہاں آ جائے گی تو پھر کبھی دل سے باہر نہیں جائے گی۔ میں اسی پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال ہم سب پر اپنا کرم اور فضل فرمائے، جو سنا اس پر عمل کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔